the two big reasons I have kept in front of you. So उसके बाद when I came out of that pregnancy and delivery, उसके बाद भी ऐसा था कि मेरा वजन बढ़ते ही जा रहा था. So I thought कि diet मेरा control में है, सब है, तो फिर why is the reason that I am getting obese? Then my angel Itish Javan, he introduced me to this BTC, the virtual club, the Wellness Redefined club, जो मैंने अभी 2 months पहले ज्वाइन किया. और यहाँ ज्वाइन होने के बाद जो मेरा डिफरेंस आया, I lose 6 kg of my weight within this 2 months. और जो मेरे इस PCOD में ये जो डिजीज में सफर कर रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट आया. फिर since 4 months I was also suffering from skin infection, fungal infection, which I took all the medicines again but was not successful. There was intolerable burning and itching all over the body. That also I got cured, and so I got so much inspired by this BTC and their products that has got a very big change in my life. And I decided yes, I will join the group, and I just want कि जैसे मेरी life change हुई है, I can change the life of many people, and I can bring awareness in all people. Why the health is so important, why one should be conscious about the health, how can we stop sufferings, because it is always said that prevention is better than cure. Yeah, it's a well-known phrase you have known. So why we won't take prevention first? Why always we should suffer? And so once again, I want to thank Itish sir and all the virtual club members who have given this golden opportunity to me to talk on this topic. So I'll come back. मैं वापस उस topic पे आती हूँ, that is PCOD and PCOS. To say कि health related diseases जैसे diabetes हो गया, thyroid हो गया, ये हमेशा यानी टॉपिक है जो डिबेट में होते हैं, जो मेडिकल लोग डिस्कस करते हैं, एंड इट्स वेरी कॉमन कि थायराइड, बीपी ये चलता. बट एक डिजीज ये है जो दैट इज लिटिल निग्लेक्टेड, एंड इट इज लाइक कि क्यों पता नहीं, बट इट इज ऑन इनिशियल स्टेज इट इज नॉट हैंडल्ड. और ये कब पता चलता है? जब शादी होती है, जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है, कंसीव होने में प्रॉब्लम जाता है, तब ऐसा होता है कि then the after taking the test, after taking sonography, सब होने के बाद then we diagnosed and come to the point कि the patient is suffering from PCOD since many years. तो क्यों ये मिस हो जाता है? और इसका क्या है कि एक तो ब्रैकेट एज इतना बड़ा है, जैसे you will see that this disease it is seen from 12 to 14 years to 40 to 45 years age. यानी इसका एज ब्रैकेट है वो इतना बड़ा है कि now at present above 80% females they are suffering from PCOD. So better if we take prevention, because अगर इन symptoms को neglect किया जाता है जो कि पकड़ में नहीं आते initial stage में, it will get converted to a very big disease which is unknown to many people. तो exactly ये PCOD क्या है, PCOS क्या है, I'll tell you what are the cause, why it happens, क्या reasons है इसके. So PCOD का सबसे पहले full form है polycystic ovarian disease, that is the hormonal imbalance that takes place in body. उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि ओवरीज जो रहते हैं वो एक तो एनलार्ज होते हैं और बहुत सारे स्मॉल सिस्ट वी कैन सी दैट आर फॉर्म इन द आउटर स्टेज. वैसे ही PCOS the full form is polycystic ovarian syndrome. We can see that there are dysfunction of the hormonal वो जो कुछ functioning रहता है हार्मोन्स का, उसका डिसफंक्शनिंग होता है, बहुत सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, that we call as polycystic ovarian syndrome. Now I'll directly come to what is the cause of PCOD, PCOS, क्यों ये होता है. So the first reason you can see the slide, there is a genetic factor. Genetic factor means जो अपनी family history, अभी अपन देखते हैं कि family history में अगर mother को है, aunt को है या किसी को है ये, तो you can see in the patient की दिखाई देगा कि PCOD से वो सफर हो रहे हैं. In the same way there are environmental factors such as obesity हो गया, weight gain हो गया. मेरे पास बहुत patient आए थे जिनका weight gain बहुत ज़्यादा था, तो जो कुछ हमको सिखाया गया था ओवरऑल मेरे मेडिकल कॉलेज में, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट वन शुड से टू द PCOD पेशेंट इज कि भाई पहले अपना वजन कम करके आओ, वो बहुत जरूरी है. विदाउट लूजिंग इट कुछ भी ट्रीटमेंट लो, कुछ भी, इट्स नॉट सो इजी.
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज वेट। और क्या होता है, पीसीओडी डिजीज जब अपने बॉडी में होता है तो उसका एक सिम्टम ये है कि वो अपने आप वजन बढ़ाता ही है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मेन लाइफस्टाइल की क्या खाते हैं, अपने खाने में क्या, डाइट में क्या रहता है, एनवायरनमेंट में क्या है, यानी जैसे अपनी लाइफस्टाइल हो गया, अपन कब सोते हैं, कब उठते हैं, खाने में क्या खाते हैं, बाहर का रेस्टोरेंट्स का पिज्जा बर्गर वो सब, this all junk food are also the reason for the cause of PCOD and PCOS. Then the most and most important factor जो बहुत बड़ा कॉज है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें अपने को देखा जाएगा कि तेरा एंड्रोजन्स, अभी एंड्रोजन्स यानी क्या, इट्स अ मेल हार्मोन। आप देखा जाएगा तो फीमेल और मेल में दोनों में, मेल फीमेल दोनों हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो एंड्रोजन्स आर द मेल हार्मोन्स, और जब इनका इम्बैलेंस होता है तब पीसीओडी होता है। सो दिस हार्मोनल इम्बैलेंस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पीसीओडी। वैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी ये क्या करता है, जब अपन खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स अपने पेट में जाते हैं, जिससे ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो इंसुलिन का काम क्या रहता है कि उस ग्लूकोज को अपने ब्लड से सेल तक पहुंचाना। बट इसकी डिसफंक्शनिंग होने की वजह से वो फेल हो जाता है सेल तक पहुंचाने में, और उसके वजह से सेल उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। सो दे आर प्रोन टू डायबिटीज, और डायबिटीज पेशेंट्स आर आल्सो suffered from this PCOD and PCOS. In the same way, the next you can see the imbalance between FSH and LH. अभी ये FSH यानी क्या है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अभी इनका इम्बैलेंस होना यानी एग्जैक्टली क्या होता है, I'll tell you on the next slide. Now you can see here PCOD, why it happens. एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा स्लाइड पे, उसमें आपको दिख रहा होगा द एग, द ओवरी, जिसमें एक छोटा सा एग है, जिसको ओवुलेशन परफेक्ट टाइम पे आना जरूरी है। अगर ओवुलेशन अगर अपना फंक्शन सही है तो ओवुलेशन सही होगा, ओवुलेशन सही है तो मेंसेस बराबर आएंगे, और अगर मेंसेस बराबर आते हैं तो इंसान कंसीव कर पाएगा, उसको प्रेगनेंसी रहेगी। बट पीसीओडी में क्या होता है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड जो आप देख पा रहे हैं, इट इज द मास्टर ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की ये मास्टर ग्लैंड है। ये मैसेज देती है हाइपोथैलेमस को जीएनआरएच सीक्रेट करने में, और ये रिलीज करते हैं ये दो हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। तो ये जो रिलीज करती है, तो उसमें से जो एफएसएच आपको दिख रहा है वो है फीमेल हार्मोन, जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है, और जो एलएच है that is we called as androgen, that is the male hormone जो मेल सारे इसमें क्रिएट करता है। तो इसमें जब इम्बैलेंस होता है तो इसमें प्रॉब्लम आता है ओवुलेशन में, मेंसेस में और कंसीव होने में। सो the main reason of the PCOD PCOS is the imbalance of FSH and LH. The next slide please. अभी यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है, द पिक्चर हैज जूम्ड एंड यू कैन सी क्लियरली वहाँ ओवरी और उसमें एग है, और एक तरफ एफएसएच जो रोल प्ले करता है, जो ग्रैन्युलो सेल से सराउंडेड है वो एग, और उसका जो कवरिंग है वो एलएच करता है, जो थीका सेल्स आपको दिख रहे हैं उसका जो कवरिंग है वो थीका सेल्स है। अभी इन दोनों के अपने अपने रोल है, जैसे मैंने बताया एफएसएच इज रिस्पांसिबल फॉर फीमेल हार्मोन्स टू रिलीज इट, टू प्रोड्यूस फेमिनाइन कैरेक्टर्स इन इट, एंड एलएच का काम होता है एंड्रोजन्स, दैट इज द रिलीजिंग ऑफ द मेल हार्मोन्स। जब इनका इम्बैलेंस होता है, जैसे आखिरी में देखा गया, तब पीसीओडी होता है। और जो मैंने अपने मेडिकल फील्ड में देखा है, इतने सारे गर्ल्स है जो कॉलेज डेज से ही ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जहाँ मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं। बट क्या होता है जब जस्ट फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे जिनको ये पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था, but after tired of taking allopathic treatment they switched on to homeopathic, and when I asked them कि कितने साल हो गए आपको मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं, so they said कि yeah 4 to 5 years। तो मैंने उनको बोला फिर इतना टाइम क्यों लगाया आपने दिखाने के लिए, what was the reason behind it?
तो दे सेड कि प्रॉब्लम आता था बट इट इज 10 to 15 days लेट. सो वी आता तो है तो फिर देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, बट नो, दिस इज अ रॉन्ग मिथ बिकॉज मेंसेस ये 28 डेज में ही आने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो 1 मंथ का है उससे 4 डेज आगे या पीछे चलता है. बट इफ अगर वो 10-15 दिन के बाद आते हैं, अगर वो 2-3 महीने के बाद आते हैं, अगर उसमें 6 महीने की गैप है, ये ऑल पॉसिबिलिटीज में you have to go to doctor, you have to give your body that protein, that requirement which the pituitary gland needs. अगर आप उसको सही पोषण नहीं देते हैं, सही प्रोटीन रिच जो डाइट रिक्वायर्ड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं देते हैं, तो वो सही फंक्शन नहीं करेगा. और अगर उसने सही फंक्शन नहीं किया तो ये LH और FSH का इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से PCOD होगा. Next slide please. Now in normal people अगर जब वो अपन चेक करते हैं कि तो LH और FSH का रेशो दिखाया गया है स्लाइड पे, दैट इज 1.5:1. और वही रेशो अगर अपन PCOD PCOS पेशेंट में निकालते हैं तो यू कैन सी सो मच डिफरेंस. उसका रेशो आ रहा है 3:1, यानी इम्बैलेंस इज सो बिग. सो द सिम्टम्स आर कॉमन. ये होना ही है क्योंकि इतना इम्बैलेंस है तो उसके साइन सिम्टम्स दिखने ही है. और ये क्यों होता है, व्हाट इज दिस? PCOD मींस हार्मोनल, जो मेल हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन रिलीज ज्यादा होता है फीमेल में, जिसकी वजह से ये PCOD फॉर्म होता है. और ऊपर से ओबेसिटी, फिर ओबेसिटी की वजह से ओवुलेशन प्रॉब्लम, द डायबिटीज इज आल्सो द फैक्टर, द इंसुलिन रेजिस्टेंस. जैसे मैंने आपको बोला है कि वो इंसुलिन फेल हो जाता है सेल तक उसको ग्लूकोज पहुंचाने में, तो दैट इज द रीजन. देन इरेगुलर पीरियड्स, एज आई टेल यू द एग्जांपल्स कि मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आए हैं. ऐसे भी केसेस हैं जहां मेंसेस आए हैं बट वो रुके ही नहीं है, 1 month हो गया, दे आर ब्लीडिंग. ऐसे भी है. और ऐसा है कि 4 महीना रेगुलर आते हैं, 4 महीना इरेगुलर. देयर आर वेरिएशंस, देयर आर डिफरेंसेस. And all this factor also due to that insulin resistance and PCOD, even the it get affect to skin. वो oil भी बहुत ज़्यादा secrete करता है, जिससे there is darkness of the skin, there is pigmentation on the skin. And लोग बोलते हैं कि सर को मैं जब तेल लगाता हूँ तो चेहरे पे ऑयल आ जाता है. Always that is not the reason. बहुत बार अपने हार्मोनल चेंजेस जो अपने बॉडी में होते हैं उसकी वजह से भी ऑयल सीक्रेट होता है, उसके वजह से भी एक्ने, पिंपल्स आते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं. देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Signs and symptoms. Even see, I always, instead of giving main focus to why and what are the causes of PCOD, ये तो मैंने आपको बताया. Only the reason is to give a little knowledge about the medical science कि क्या cause है, ये क्यों होता है. But to tell everyone, I give more focus to the signs और symptoms. इसीलिए क्योंकि ये signs और symptoms ही है जो आपको बताएंगे, जो you can bring awareness in other people too कि आपको जरूरत है न्यूट्रिशन की, प्रोटीन की. ये वही साइंस एंड सिम्टम्स है that will let you diagnose कि exactly what we are suffering from. So I'll let you know कि like exactly वो साइंस सिम्टम्स क्या है, and please listen क्योंकि I know कि इसके sufferings बहुत unbearable है, बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत वेरिएशंस है इस डिजीज में, जिससे पेशेंट जाता है. आपके घर में भी आपकी बेटी होगी, वाइफ होगी, बिकॉज द एज ब्रैकेट इज सच अ बिग. द सफरिंग्स आर फ्रॉम 12 to 14 years to 40 to 45 years. So अगर किसी में ये सिम्टम्स दिखते हैं, so please focus to it and give a rich protein. So the symptoms I would like to share with you कि जैसे बाल झड़ना, सर के ऊपर से बाल झड़ना, वजन बढ़ना, या मेंसेस बराबर ना आना, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी बराबर ना रहना, और अनवांटेड प्लेसेस पे बाल आना. इस मेल हार्मोन्स ज्यादा है उनका प्रमाण, तो लाइक फेस, चेस्ट, बैक, आर्म्स, देयर आर मेनी अनवांटेड प्लेसेस वेयर यू कैन सी अ हेयर ग्रोथ. मोर स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The irregular periods, that is the biggest important symptom which you will see in each and every PCOD patient. कि जो मेन उनका symptom रहता है that is irregular periods. और
why I don't know, but it is always neglected कि आज जाएंगे कल जाएंगे, but they don't know कि किसमें किस big disease में इसको convert हो सकता है. और ये negligence होने के बाद जब शादी होती है और conceive करने का problem आता है, तब ये infertility, तब ये PCOD पकड़ में आता है. तो ये range अभी इतना बढ़ गया है, 80 to 90% women are suffering from this PCOD and they are getting difficult to conceive. और उसके वजह से उनको IUI, IVF जैसे ट्रीटमेंट पे जाना पड़ रहा है. By God's grace and by blessings of everyone, I didn't reach to that treatment. I was blessed with homeopathic medicines and all what I came out of it. But the treatments are not easy. जो IUI और IVF की हमारी पढ़ाई हुई है, the injections, the tablets, बहुत ज़्यादा heat produce करता है body में, and artificial pregnancy. It's really very difficult to go out of that. और मेरे पास ऐसे बहुत patient आए जो इतने late आए, and I was not that time introduced to this virtual club, this wellness redefined club. ये जो अपनी proteins जो है ये मेरे पास तब नहीं थे, so I couldn't help them, and it was so late, so last in this stage कि I have to shift them to IUF and IVF. So you can see 70 to 80% patients are there, or the public is there, women are there who are suffering from this disease. So next slide, please. There are many more signs. There are many more signs and symptoms like I have told you कि जैसे PCOD होता है तो oil secretion बहुत होता है, जिसके वजह से you can see pimples, acne, pigmentation on the face. More commonly seen in college girls, बहुत ज़्यादा है. मेरे पास भी पेशेंट आए हैं जो शादी के लिए जिन्होंने अपना मैरिज ब्यूरो में नाम दिया, बट मम्मी परेशान है, टेक केयर ऑफ योर फेस, बहुत पिंपल्स है मैम, जाना चाहिए डॉक्टर, ये वो. सो जब हमने उसकी केस हिस्ट्री ली, उनका ओवरऑल लिया, कंप्लीट केस हिस्ट्री, all with all peculiar and all uncommon symptoms, जब सब निकला तो diagnosis was PCOD. जो उनको they didn't realize, they don't know कि ये क्या है और अपन क्यों सफर हो रहे इससे, और वो रीजन है कि जिसकी वजह से पिंपल्स आ रहे चेहरे पे, they were unknown to it. So that's why I always give focus to the signs and symptoms कि अगर ऐसा है तो it's not normal कि सबको आ रहे हैं, आपको क्यों आ रहे हैं, क्या changes है, focus to it. So our body needs protein, our body needs the high calorie nutrients to maintain the functioning of the body. In the similar way, यहाँ आप देखोगे कि मेल हार्मोन्स की वजह से अनवांटेड ग्रोथ होती है, so they feel so low and self confidence low हो जाता है, stress, tension. No one's like this unwanted hair growth, and we can see in the face, arm, chest, back and legs. So it's always be good to prevent oneself from it. Next slide, please. The depression, the mood swing and the loss of self confidence. जो कुछ मेरा 9 years का medical का जो कुछ experience है, whenever I take case taking, I have seen कि stress, tension is the mental symptoms are the most big factor which plays the role, जिसके वजह से physical symptoms produce होते हैं. जब मैं case taking लेती हूँ, I have searched कि जो लोग हैं उनके लाइफ में जो स्ट्रेस, टेंशन है, जो डिप्रेशन है, वो भी एक रीजन है जिसके वजह से दे आर प्रोन टू ऑल फिजिकल फैक्टर्स लाइक दिस, और वो सब अपने बॉडी पे आता है. एंड द मूड स्विंग्स आर देयर, यस, देयर इज इरिटेबिलिटी. जो पेशेंट रहते हैं उनके सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि जैसे वो मुझे शेयर करते थे कि हमारा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ना किसी चीज में इच्छा हो रही कि कहीं कुछ जाना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए. they started avoiding people due to this, और इनफैक्ट कि कुछ उत्साह नहीं था उनमें, और मूड स्विंग्स बहुत थे, और एक लो सकता भी, I lose hope, nothing can happen, nothing can be done. And I can very nicely understand this all mental symptoms, because I have very badly gone through this symptoms, the depression, the stress. I once again I can never forget how that time my in-laws, my husband have stood behind me, my mother, father, my parents. I'm very lucky to blessed with all the relationships in my life that time who came helped me to bring out of it. क्योंकि
तब मेरे पास ना ये न्यूट्रिशन था, ना ये प्रोटीन था जो मैं इतनी इजीली उसमें से निकल सकती थी. सो दे आर वेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now you can see कि it's not compulsory कि obese people में ही PCOD या PCOS होगा. There are many patients. मेरे क्लिनिक में ऐसे बहुत पेशेंट आए जो दुबले थे तभी भी वो PCOD और PCOS से सफर हो रहे थे. As you can see in slides कि underweight patients are also prone to this disease. और आजकल तो डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, उसका तो कुछ एज ही नहीं रहा. There is no age factor there also. आजकल बच्चों में भी डायबिटीज निकल रहा है, थायराइड निकल रहा है. In the similar way, there are this, यानी जरूरी नहीं है कि ये obese person में ही दिखेगा. You can also see in thin people too. In the same way, मैंने जैसे बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कि जो डायबिटीज है या फिर नहीं भी है, उनमें इंसुलिन पीसीओडी की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उससे इतना डिस्टर्ब हो जाता है द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी कि इंसुलिन और ब्लड शुगर ग्लूकोज सब ब्लड में इतना बढ़ जाता है कि वो डिसफंक्शन करता है. उसमें से स्किन के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर होता है. दैट इज द स्किन गेट डार्क, देयर इज पिगमेंटेड ओवर द स्किन and there is darkness, the pimples, the acne and the dysfunctioning. Next slide please. See, जो पेशेंट्स मेरे यहाँ आते थे, आई ऑलवेज टेल देम कि नेवर निग्लेक्ट एनीथिंग. बिकॉज एक तो अपने हम जो रहते हैं, जो नॉन मेडिकोज रहते हैं, उनको पूरा नॉलेज नहीं रहता. वो थिंक तो आज अगर मेंसेस आए नहीं है, 10 दिन बाद आए हैं तो मतलब आए तो है ना, तो देयर इज नथिंग लाइक कि क्या होगा. बट नो, वन शुड टेक ईच एंड एवरीथिंग सीरियसली. इसलिए बिकॉज यू नेवर नो कि एक छोटी सी चीज किस चीज में कन्वर्ट हो सकती है. If all these signs and symptoms what I have shared with you, अगर अपन इसको निग्लेक्ट करते हैं, अगर अपन इसको फोकस नहीं करते, इस पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या प्रॉपर पोषण प्रोटीन अगर अपने बॉडी को सप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये एक छोटे से सिम्टम्स एक बहुत बड़े इसमें कन्वर्ट हो सकता है. लाइक इवन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज, you can see high cholesterol, can see heart diseases and even stroke. और अगर ये ऐसे ही निग्लेक्ट किया गया तो this PCOD and PCOS can also be converted into increased risk of uterine cancer too. यानी जब ये सफर करते हैं तो अपन सोच भी नहीं सकते कि अगर इसको निग्लेक्ट किया गया तो ये यहाँ तक भी पहुंच सकता है. नेक्स्ट. What next? What lifestyle changes? What medication? अभी तक जो मैंने आपको बताया that was कि ये PCOD कैसे होता है, what are the causes of it, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, अगर इसको निग्लेक्ट किया गया तो क्या इसका बड़ा रूप ये ले सकता है, क्या हो सकता है. तो फिर इसके लिए अभी क्या करना चाहिए, what one should do and what one should not do. After knowing everything, I would like to share. You can close the slide. Nitish sir, thank you for the PPT presentation. So first of all, I'll like to tell you the what things what you should avoid. That is, सबसे पहले I would focus to the ये कि एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए. यानी हाई प्रोटीन, अगर इस PCOD से अपने को बाहर निकलना है तो हाई प्रोटीन is very much required to gland, क्योंकि उसके ही वजह से अगर उसका फंक्शनिंग सही रहेगा और वो सही तरह से बैलेंस मेंटेन कर पाएगा, जिसकी वजह से मेंसेस भी रेगुलर आएंगे और द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व. देन हैवी अपना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये अपने डाइट में इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इट शुड बी डेली इन्वॉल्व्ड इन अवर डाइट. उसके बाद पानी लोग बहुत कम पीते हैं. जो मेरे पास पीसीओडी पेशेंट आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको नहीं याद रहता है, आप अपने सीधा 3 बॉटल अलग से निकाल के अपने बाजू में रखिए. दैट्स ओनली मेड फॉर यू एंड यू हैव टू ड्रिंक. वो आपको पानी पीना ही है, पूरे दिन में इसको खत्म करना ही है. वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो आई सजेस्ट कि विद वार्म वाटर यू कैन यूज लेमन. आप नींबू यूज कर सकते हैं, एक लेमन पूरा. इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. ये ना कि आपको कोरोना से भी बचाएगा, और ये पीसीओडी के लिए बेस्ट है. ये मैंने खुद ने लिया है. जो
ये इजी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट इजी नहीं है, इसीलिए इसको इतना फोकस दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन ऑल ट्रीटमेंट। मैंने एलोपैथिक लिया, आयुर्वेदिक लिया, मैंने खुद का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। इट टेक्स टाइम, बट आई वॉज वेरी फोकस्ड कि डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, इट इज ऑल नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन इट। मैंने पूरा साल भर आई प्लान माई कंप्लीट लाइफ स्टाइल, कब उठना है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, अपने 3 बॉटल अलग से, टाइम पे सोना है, ये सब मैंने इतनी मेहनत तब ली। और इसलिए अगर ये वर्चुअल ये प्रोटीन ये तब रहता तो शायद इतनी भी मेहनत, यानी इतना स्ट्रेस टेंशन मुझे नहीं रहता। बट यस, दैट वाज माय ड्रीम टू बी अ मदर, एंड फॉर दैट आई डिड ऑल दैट आई कुड डू। अब क्या अवॉइड करना चाहिए, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अपना डाइट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए और क्या नहीं। I would say कि अभी I have also gone through that youngster. I am also in the age, I know सबको Chinese noodles, pizza, burger किसको नहीं पसंद, इवन मुझे I am also fond of it. बट एक रिस्ट्रिक्शन अपने डाइट को देना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैदा, बेकरी आइटम्स, ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड नॉट बी टेकन इन अ लार्जर अमाउंट, आई से। एंड स्ट्रेस टेंशन भी कंट्रोल करना चाहिए। आई नो कि लोगों को बोलने में आसान है कि टेंशन मत ले, हो जाएगा, बट जिसके ऊपर बीतती है उसको समझता है। सो आई नो वेरी वेल कि बहुत स्ट्रेस टेंशन आई हैव गॉन थ्रू, बट मैंने उस पर सोल्यूशन निकाला। एक तो मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग कि आप मेडिटेशन करके यू कैन कम आउट ऑफ इट। अदर आई सजेस्ट कि अगर आपकी कोई हॉबीज है जो आपको पसंद है, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट योर माइंड टूवर्ड इट्स। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, तो उस समय में जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन में थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने एक वर्ल्ड टूर पैकेज रखा था, जिसके सपने देखते देखते मैं वो भी स्ट्रेस और टेंशन में से निकल गई थी। सो इफ यू आर इन अ स्ट्रेस टेंशन, यू कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ इट एक मेडिटेशन थ्रू, या फिर यू कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ इट थ्रू एक्सेप्टिंग जो कुछ हॉबीज है आपके, you can always convert your mind towards that hobbies. ओवरऑल आई वुड से कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस आए अभी तक, जो मैंने आपको शेयर किया, क्या देना चाहिए खाने में क्या नहीं, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर कि जो केसेस मेरे होम्योपैथिक मेडिकल लाइफ में आए, हाउ आई ट्रीटेड। देयर वाज वन लेडी जिसके मेंसेस 1 साल से बंद थे, 1 साल हो गया उसको मेंसेस आ नहीं रहे थे। शी टुक एलोपैथिक ट्रीटमेंट, उसने बहुत खर्चा किया, 5000 12,000 सोनोग्राफीज, और डिसफंक्शनिंग होने की वजह से ओवुलेशन के टेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। तो फाइनली व्हेन शी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू मी, शी सेड कि आई एम वेरी टायर्ड ऑफ ऑल दिस सोनोग्राफी एंड ऑल दिस टेस्ट, एंड इवन आई एम लॉस्ट माय लॉट ऑफ मनी। और मेरा जो काम है, मैं एक मेड हूँ, लोगों के यहाँ बर्तन धोने के लिए जाती हूँ, और मेरा घर उसी पे चलता है। और हमारे इसमें है कि नहीं, बच्चा तो चाहिए, और उनका कास्ट में लाइक लड़का भी चाहिए, ये भी एक था। सो जब उसने, मैंने उसका पूरा केस टेकिंग लिया, ओवरऑल सिम्टम्स लिए, मुझे ये लगा कि उसके डाइट में वो प्रोटीन वो सब नहीं है जो होना चाहिए। वॉट एवर हेल्थ आई गॉट, आई गेव हर, मैंने उसका केस टेकिंग लिया, रेपर्टराइज लिया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस जो उसका मेंसेस 1 साल से, वो 10 दिन में उसका मेंसेस स्टार्ट हुआ। And after taking treatment for 2 months, even she got pregnant and she was blessed with a baby boy. And that was the biggest miracle what I have experienced in my life. और मैंने बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं लिया, क्योंकि मैंने उसको बोला कि जो तेरे चेहरे पे जो स्माइल है ना, इट्स गिविंग मी 1 करोड़ रुपीज फीलिंग। that was the biggest happiness I can say of my life। और जब मैंने उसका बच्चा हाथ में लिया, so the tears drop out of my eyes, क्योंकि मैं देख सकती थी कि वो किस सफरिंग से जा रही थी and how it worked out। but it's always not easy कि पेशेंट को मेडिसिन के साथ समझाया जाए कि भाई ये खाओ वो खाओ। इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे ये क्लब इसीलिए अच्छा लगा बिकॉज दे हैव एक्सप्लेन सो वेल कि एग्जैक्टली
क्या जरूरत है अपने बॉडी को कि उसका डिसफंक्शनिंग ना हो, पिट्यूटरी ग्लैंड में ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है जो ये प्रोटीन्स, ये शेक्स अपने को दे सकता है। ये क्लब मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इट वेरी सिंप्लीफाइड अवर डाइट, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं चाहिए, और प्रोटीन शेक्स में ऐसा सब क्या रहना चाहिए जिससे अपन ये डिजीज तक पहुंच ही ना सके, कि फर्स्ट ओनली गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिजीज। इसलिए क्योंकि और फिर जब ये गोल्डन चांस मुझे मिला और ये पीसीओडी पे बात करने का चांस मिला, स्टेड यस आई वांट टू टॉक, बिकॉज कि मैं जिस सफरिंग से गई हूँ मेंटली फिजिकली, आई रियली डोंट वांट कि कोई और जाए। और अगर ये प्रोटीन से, ये वर्चुअल क्लब से अगर मैं लोगों के लाइफ में चेंज ला सकती हूँ या लोगों के इसमें अवेयरनेस ला सकती हूँ, सो दैट विल बी अ बिगेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ गोल्डन चांस फॉर मी। और जो मेरा पैशन रहा है ऑलवेज टू गिव सोशल सर्विस, जहाँ मेरे हस्बैंड की ट्रांसफर हमेशा होती रहती है, इट वाज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि मैं अपना पर्सनल क्लिनिक रूम लेके ही चला सकूं। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे घर से चलाना पड़ा, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं उस क्लिनिक का एक्सपोजर कर पाई। तो तब मैंने ऑलवेज जो मेड है, जो पुअर पीपल है, उनको हेल्प किया ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके और उस हिसाब से मेरी पढ़ाई चालू हो सके और मैं उनको क्योर कर सकूं। और आज ये वर्चुअल क्लब से मुझे और अच्छा बिग सपोर्ट मिला है कि नॉट ओनली बाय माय होम्योपैथिक डिग्री बट आई कैन ऑलवेज हेल्प देम थ्रू दिस वर्चुअल क्लब by giving the exact protein to them. So that's all, and I hand over to Vedis sir. Thank you once